لیکن تھا چھپا ہوا. رب فرماتا ہے کن تو کنزن مخفیہ, میں گمشدہ خزانہ. سے گزارش ہے اس جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے منبر سے اور آپ حضرات بذات خود زمانے والوں کو یہ پیغام دے دیں, ہم اپنے نبی کی یوم ولادت کو ہمیشہ سے امن کے ساتھ منا رہے ہیں اور انشاءاللہ امن کے ساتھ مناتے رہیں گے. بس آخری گفتگو, یہ منبر ایک ذمہ دار منبر ہے. آج ہر چہار جانب سے اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں. میں آپ کو بتا دوں وہ پیغمبر جس نے زندگی کے ہر موڑ پر اپنے ماننے والوں کو امن کا پیغام دیا ہے, اپنے چاہنے والوں کو امن کا پیغام دیا ہے, اسی پیغمبر کی شان میں آج گستاخیاں کی جا رہی ہیں. اسی پیغمبر کی شان میں آج لوگ کمنٹیں کر رہے ہیں غلط طور پر. میں سب سے کہنا چاہتا ہوں, آج بھی اگر آپ صحیح طور پر میرے نبی کی سیرت کو پڑھ لو, خدا کی قسم آپ اس کے بعد پھر میرے نبی کی شان میں گستاخیاں نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو بتا دوں, یہ جو میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں, چاہے جس قوم کے لوگ ہوں, ان کی اصل میں خطا ہے, ان کی اصل میں خطا ہے. حلالی کوئی میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا. ان کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. السلام علیکم. بہت خوب, ماشاءاللہ. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد النبی کے اصل جتنے حقوق ہیں, جتنے رائٹس ہیں, اگر یہ ڈے سیلیبریٹ کریں تو مدر ڈے, فادر ڈے, ٹیچرز ڈے, چلڈرن ڈے, مزدور ڈے, لیبر ڈے, یہ جتنے بھی ڈیز ہیں جس کو پوری دنیا سیلیبریٹ کرتی ہے, پوری دنیا ان دنوں کو چھوڑ کر کے صرف اگر عید میلاد النبی کا ڈے سیلیبریٹ کریں تو کافی ہے. کیونکہ میرے نبی سے آنے سے قبل کسی کو کوئی رائٹس, کوئی حق نہیں دیا گیا تھا. بچوں کو حق دینے والے میرے نبی, تمام نوع انسان کو ہیومن رائٹس دینے والے میرے نبی ہیں. حضرات محترم, علامہ حمید صاحب کی تقریر کی کچھ نکاتی باتیں میں اس طرح پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب جنون عشق کی تاثیر لکھتے ہیں جب بھی جنون عشق کی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات محترم, یہ آل رسول, اولاد رسول, اولاد غوث اعظم سید اشرف عالم میر صاحب قبلہ مدظلہ نورانی رونق اسٹیج ہو چکے ہیں. اسٹیج اور جلسے کی مقبولیت کی دلیل ہے کہ آل رسول آ چکے ہیں. سبحان اللہ. اب میں تھوڑی دیر کے لیے ایک ضروری امپورٹنٹ بات آپ کو, ہم سب کو عید میلاد النبی کو ایک عاشق رسول, ایک شعر, مہاراشٹر کا شعر, جیتا جاگتا ہوا شعر, لائیو مبارکباد دینا چاہتے ہیں. آپ سننا چاہتے ہیں جی, جن کا نام آپ بخوبی جانتے ہیں, امتیاز جلیل, جو یعنی کہ سابق خاصدار امتیاز جلیل صاحب لائیو آنا چاہتے ہیں, آپ کے روبرو ہونا چاہتے ہیں. انہیں کے حوالے سے ایک شعر کر دیتا ہوں, اس کے بعد لائیو. مالک جب بھی جنون دوستوں تک پہنچانا ہے. آپ جانتے ہو گے کہ کچھ مہینے پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا جہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی جو کی گئی تھی, اس کے بعد تقریباً 60 FIR رجسٹر ہونے کے باوجود بھی اگر حکومت کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے, اور اس کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ کھلے عام ہم کو مسجدوں میں گھس کر مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے, اس کے باوجود بھی پولیس, پرشاسن, سرکار, عدالتیں سب خاموش بیٹھی ہے, تو کہیں نہ کہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان اپنا جمہوری جو اختیار ہمیں دیا گیا ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم سبھی نے ایک پلیٹ فارم کے اوپر آنا چاہیے. تو
वसल्लम जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते के हिसाब से कैसी कैसी मुश्किलें आ जाए उसके बावजूद भी हमारे लिए हमारे नबी क्या मायने रखते हैं, ये आज पूरी दुनिया में हमें दिखाया है कि ईद मिलाद के मौके के ऊपर पूरी दुनिया किस तरीके से बाहर निकलती है। आप लोग भी बाहर निकले हुए हैं, बस एक इस मौके को जाने ना दे, वरना ऐसा हो जाएगा कि कोई भी हमारे ऊपर उंगली उठाएगा और आगे चलकर जब हमसे सवाल किया जाएगा कि तुम्हारे रसूल के खिलाफ जब आवाज उठाई जा रही थी, बेहुरमती की जा रही थी, गुस्ताखी की जा रही थी, तो तुम क्या कर रहे थे। तो ये वक्त है, मैं तमाम उलमाए दीन से, हमारे उलमाए किराम से, मौलानाओं से, इमामों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इसकी आप पहल कीजिए, क्योंकि ये सियासी मुद्दा नहीं है, ये जो है हमारे दीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसमें आप लोग पहल करिएगा और इंशाल्लाह आप लोगों का जो भी फरमान रहेगा, जो भी हुक्म रहेगा, वो हमारे सर आंखों के ऊपर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग अपने जुलूस को जारी रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शहरी जुलूस कमेटी की जानिब और सुन्नी उलमा कौंसिल की जानिब से आपको मुबारकबादियाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुबारकबादियाँ दी हैं। अच्छी सोच है, इस सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जी, या ठिकाणी पिंपरी चिंचवड शहराचे नेते माननीय अजितदादा गव्हाणे या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचं पिंपरी चिंचवड शहर जुलूस कमिटीच्या वतीनं सहर्ष स्वागत। ज़ात मोहतरम, मैं बोल रहा था कि मौरिख जब भी जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं, मौरिख जब भी जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। पढ़े लिखे जाहिल नहीं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीन वालों हमारे कद का अंदाज़ा नहीं तुझे, ज़मीन वालों हमारे कद का अंदाज़ा नहीं तुम्हें, हम फलक से खून पर नारे तकबीर लिखते हैं, हम फलक से खून पर नारे तकबीर लिखते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना रईसुल मुतकल्लिमीन हज़रत अल्लामा मौलाना जाफ़र सादिक़ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नारानी रवाना के स्टेज हो चुके हैं। साथ ही साथ औलाद रसूल, औलाद गौसे आज़म, ये हमारी जलसे की मकबूलियत की दलील है। मैं माज़रत के साथ एक छोटी सी तकरीर, बेखतर वो बेधड़क बोलने वाला मुक़र्रिर चंद लम्हों के लिए, वरना वो बाकी रह जाएंगे। अल्लामा तनवीर रज़ा नूरी साहब से गुजारिश करूँगा कि चंद बातें हम सामने को सुना दें। एक बार नारे देंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा तनवीर रज़ा नूरी। मुअज़्ज़ज़ उमा पर उलमाए ज़मील एहतराम सामी निज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुकून हो, रूह को दिल मतले अनवार हो जाए। दुआ कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए। रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, हर गुल हर शजर पे मोहम्मद का नाम है। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तहज़ीब व तमद्दुन, अखलाक व किरदार का आला तर्ज देकर इंसान को इंसान बनाने वाला मज़हब है। इंसानियत और आदमियत का नाम ही इस्लाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमीन के लिए रहमत बनकर आए, तो मुसलमान जिस नबी का कलमा पढ़ता है वो रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन है। हमारा रब रब्बुल मुस्लिमीन नहीं रब्बुल आलमीन है। सारी कायनात का खालिक रब्बुल आलमीन, तो मुसलमानों का रब रब्बुल आलमीन है। तो जिस दीन का नबी रहमतुल लिल आलमीन हो वो तंग नजर मजहब नहीं हो सकता। और इस्लाम तो इतना वसी मजहब है कि जो मोहब्बत से इसे पढ़ ले वो सबर होने के लिए तैयार हो। आज जिसे बोलने की तमीज नहीं, वो महाराज नहीं, गिरा हुआ तो हो सकता है मगर महाराज नहीं हो सकता। देखिए, बात नोट कर लीजिए, नबी का नाम लेने के लिए अपनी ज़बान भी पाक होना जरूरी है और वजूद भी पाक होना जरूरी है। जिसका वजूद
उसके रसूल ना हो तो वहां तो पढ़ाई होती है। तो इब्ने तैमिया जैसे हमारा बात सेलिब्रेट है, लेकिन जहां इसके रसूल सेलिब्रेट पढ़ाई होती है वहां मर्द कैलेंडर इसको रसूल का मुजस्समा बनकर इमाम अहमद रजा खान पैदा हुआ है। तुम हमारे मजहब में क्या समझोगे? रहमतुल लिल आलमीन हमारे नबी हैं, हमारे प्यारे आका एक मुहिम में जा रहे हैं, सहाबाए किराम का जम्मे गफीर है, मदीना मुनव्वरा से गुजर रहे हैं, एक तंग गली है, उसमें एक कुत्ता है और वो कुत्ता अपने बच्चों को दूध पिला रहा है। मुस्तफा जारे रहमत आगे हैं, सहाबाए किराम पीछे हैं। नबी सबको रोक देते हैं कि साहबियों रुक जाओ, क्योंकि अगर इस गली से हम गुजरेंगे तो कुत्ता हमारे गुजरने की वजह से उड़ जाएगा और उसके बच्चे जो दूध पी रहे हैं उसका दूध पीना छूट जाएगा। गौर से सुनिए, अरे कम नबी की जान पर उंगली उठाने वालों, पहले सुनो, अरे मोहम्मद से वफा तूने तो हम कहने हैं कि जहां चीज है कुत्ता तो नापाक जानवर है, मगर हमारे नबी आलमीन के लिए रहमत है। गौर से सुनिए, आलमीन के लिए रहमत। आप लोग कहते हैं साहबा को और फरमाते हैं मेरे सामने मेरे गुलाम को रास्ता बदल दो, हमारे वजह से कुत्ते को भी तकलीफ ना हो। देखिए जूता मोम करेगा ये लोग, अब जो मैं जेब में रखो निकलो नीचे। और गुलाम जो नबी के इशारे पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। लेकिन नबी की रहमत देखिए, नबी सिर्फ बदलने के लिए हुक्म नहीं दे रहे हैं कि रास्ता बदल लो, बल्कि एक गुलाम से कह रहे हैं कि मेरा गुलाम, जब तक कुत्ता खुद ब खुद उठकर चले ना जाए तुम इसी गली पर खड़े रहना ताकि कोई यहाँ से गुजरने न पाए। तो ये हमारे नबी की शान है कि जिनकी रहमत पूरी कायनात के लिए आम है। तो जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं वो नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं, कायनात के लिए रहमत है। रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, हर गुल हर शजर पे मोहम्मद का नाम है। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में जितने रिश्ते हैं एहतराम के लायक मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दूर दराज से आए मेहमानान, बिलखुसूस सैयद आले रसूल, औलाद रसूल, महकते हुए फूल, मदीने के महकते हुए फूल, जिसके बारे में फरमाते हैं कि तेरे नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो ऐने नूर तेरा सब का नूर का। इसी की बारगाह में गुलाब पेश करने के लिए मैं अलहाल नियाज भाई सिद्दीकी और साथ ही साथ जनाब हबीब भाई शेख से गुजारिश करूँगा कि आले रसूल की बारगाह में गुलाब पेश करें। इसके साथ साथ आले रसूल की बारगाह में गुलाब पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद रसूल, आमद औलाद रसूल, आमद औलाद रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसके बाद हमारे मुक़र्रिर रईसुल मुतकल्लिमीन उस्तादुल मदरसीन शाहत हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत, इंतखाब हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना सादिक जाफ़र साहब क़बीला मद्दज़िल नूरानी की बारगाह में सदर जुलूस कमेटी अलहाज यूसुफ कुरैशी और सेक्रेटरी जनाब अलहाज अकबर अब्दुल्ला से गुजारिश करूँगा कि वो हज़रत की बारगाह में गुलाब पेश करें। हज़रत मोहतरम वक्त काफ़ी हुआ जा रहा है, मैं जानता हूँ कि आप तकरीर सुनने के लिए बेताब हैं, ये बेताबियाँ जल्दी ख़त्म होने वाली है, मगर उससे पहले आपको बेदारी के सबूत देने पड़ेंगे। बहुत बोल चुके सुबह शाम से लेकर अभी तक, अब आपकी बोलने की बारी है। आप ज़रा बोलें नारे तकबीर, जोर से ज़रा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जुलूस कमेटी कुछ हज़रात की गुलपोशी करना चाहते हैं और गुलपोशी के लिए सदर जुलूस कमेटी अलहाज यूसुफ कुरैशी शुरू हो जाए। हमारे पिंपरी चिंचोड़ शहर जुलूस कमेटी की जानिब से हमारे पिंपरी चिंचोड़ शहर के माजी शहर अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, अभी हमारे शरद पवार घाट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भावी हमदर्द अजीत भाव गवाने, इनकी गुलपोशी के लिए मैं हमारे
सैयद साहब किबला और हमारे जिक्रुल्लाह भाई पठान, इनसे गुजारिश करूंगा कि भाव की गुलपोशी करें। इसी तरह हमारे चिंचोड़ के जो विधानसभा में लड़ चुके और हमारे सबके प्यारे विठल भाव नाना काटे, इनकी गुलपोशी के लिए मैं जीशान भाई सैयद और जाकिर भाई शेख, इनसे गुजारिश करूंगा कि नाना भाव काटे इनकी गुलपोशी करें। इसी तरह हमारे पिंपरी विधानसभा के माजी आमदार एडवोकेट गौतम भाव चाबुक सभा, इनकी गुलपोशी के लिए मैं खालू इदरीस मेमन मास्टर साहब, अकबर हाजी मुल्ला साहब किबला, ये दोनों हजरात हमारे माजी आमदार एडवोकेट गौतम भाव चाबुक सभा, इनकी गुलपोशी करें। और हमारे युवा अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार घाट के इमरान भाई शेख, इनकी गुलपोशी के लिए मैं हबीब भाई शेख, इनसे गुजारिश करूंगा कि इमरान भाई की गुलपोशी करें। अब बिना ताखिर हम सभी को शुभेच्छा देने के लिए अजीत भाव गवाने, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो माइक पर आए और हमारे शुभेच्छा पदों में दे दे हमारे अजीत भाव गवाने। नेमकं चतुर्थीच्या म्हणजे गणपती विसर्जनाच्या दिवशीच जुलूस फोडते, परंतु आपण सगळ्यांनी खूप चांगला निर्णय घेतला आणि पिंपरी जुलूस कमिटीने हा निर्णय घेऊन एक आदर्श निर्माण केला की खऱ्या अर्थानं मोहम्मद पैगंबरांनी जो आदर्श आपल्या पुढे ठेवलेला आहे आणि आपल्या देशाला खऱ्या अर्थानं ज्या गोष्टीची गरज आहे, सर्व जाती धर्माच्या लोकांना एकत्र येऊन आपल्याला सगळ्यांना एकमेकाच्या सणामध्ये सहभागी होण्याची गरज आहे, एकमेकाला सुखदुःखामध्ये मदत करण्याची भूमिका ही खऱ्या अर्थानं आपल्या देशाची काळाची गरज आहे, जी इथून मागच्या काळामध्ये आपण करत आलो. आजही तशाच प्रकारची भूमिका तुम्ही या ठिकाणी घेतल्यामुळं पिंपरी चिंचवड जुलूस कमिटीचं मी मनापासून अभिनंदन करेन आणि आपल्या सगळ्यांना एकत्र येऊन काम करायचंय आणि एकत्रानंतरच खऱ्या अर्थानं आपला देश जे आपण स्वप्न बघतो, एक विकसित राष्ट्र करण्याचं जे स्वप्न आहे ते स्वप्न पूर्ण होऊ शकतं. त्यासाठी आपल्या सगळ्यांना एकत्र राहणं गरजेचं आहे आणि तो संदेश आपण या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने नक्की दिलेला आहे. आणि मोहम्मद पैगंबरांचे जे चांगले विचार आहेत, महिलांच्या संदर्भातले असतील, गरीब लोकांच्या संदर्भात असतील, गुलामगिरीला त्यांनी त्यावेळेस विरोध केला, या सगळे आदर्श आपल्याला डोळ्यापुढे ठेवून काम करायचंय आणि तो आदर्श आपण नक्की करता हे आमच्या सगळ्यांच्या मनामध्ये नक्की आहे. आणि आपण सगळेजण या निमित्ताने हा संकल्प करूया की आपल्याला आपला देश एक विकसित राष्ट्र करायचे आणि त्या दृष्टिकोनाने सगळ्यांना एकसंध राहायचं, हा संदेश आपण या निमित्ताने देऊया. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अब जिनके मुतसिद हैं आप हज़रत मोहतरम एक बार उनके इस्तेमाल के लिए नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमको मकसद से बहरहाल गुजरना होगा, हमको मकसद से बहरहाल गुजरना होगा। हम बच गए तो किसी को मरना होगा, हम बच गए तो किसी को मरना होगा। अपनी नस्लों की तबाही से बचाने के लिए इसी नस्ल को कुछ ना कुछ करना होगा। अब आपके रूबरू रईसुल मुतकल्लिमीन मुफ्ती मुदर्रिसी हज़रत अल्लामा मौलाना सादिक जाफर साहब क़िबला मद्दज़िल नूरानी मिसबाही सरज़मीन क़दरी से तशरीफ़ लाए हैं आपके रूबरू। उससे कबल हज़रत बैठ कर हम अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि
जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़। बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का नजराने अकीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाए सुदूरिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। इत्माम फरमाया और उसके आखिर में ये जो जलसे ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम रखा, मेरी तरफ से जुलूस कमेटी और सुन्नी उलमा कौंसिल के तमाम अरकान को मुबारकबाद है कि आपने इस पुरमसरत मौके पर इतने अज़ीमुश्शान जुलूस का एहतमाम किया और उसके आखिर में उलमाए रब्बानियीन को अपने स्टेज पर बुलाया और शहज़ादे रसूल भी तशरीफ़ फरमा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इन उलमा की मौजूदगी, मशाइख की मौजूदगी, हम सब लोग की इस खाकदाने गीती की तशरीफ आवरी की खुशी और मसरत में ये प्रोग्राम रचाया और बसाया गया है कि ये बज़्म मैं है या कोताह दस्ती में है महरूमी। ये बज़्म मैं है या कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़ के खुद उठा ले हाथ में नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद। एक बार दोनों हाथों को उठा करके लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। हज़रत मोहतरम औलाद रसूल नूर में नहाते हैं मुस्तफ़ा के, उन्हीं की वजह से आज अच्छा मारो जा तजुर्बा आता आता भाई चलो शुक्रिया सुनो ना, हाँ सबको पीना के खड़ा करो। सामने सब सामने, हाँ झंडा लेके खड़ा रहेगा। जल्दी मुन्नवर 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 वो फैज भाई को, वो फैज भाई को एक मिनट, वो फैज भाई को हर पीना इधर खड़े रहो, सीधा खड़े रहो। चलो आजा, तुम भी आ जाओ। ऐसा थोड़ी आएगा। अरे भाई इधर हाँ सही है। ओ फैज भाई को, फैज भाई को इधर 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 पिंपरी चिंचवड शहर में पैगंबर जयंती जश्न ईद मिलादुन्नबी 19 तारीख 9/2024 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मैदान में पूरे शहर में जुलूस मोहम्मद निकाल कर एक अमन शांति का पैगाम इस मैदान से दिया गया, जिसमें हमारे
पुलिस डिपार्टमेंट का भी हम शहर जुलूस कमेटी की तरफ से धन्यवाद करते हैं और तमाम पत्रकार बंधुओं का भी हम उनका धन्यवाद करते हैं। आज की ये जश्न ईद मिलादुन नबी का पिंपरी चिंचवड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मैदान से पूरे शहर में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में पैगंबर नबी की ज़िंदगी और उन्होंने जो सिखने को हमें दी है, एक अमन शांति का पैगाम हमने अपने धर्मगुरु मौलाना लोग के ज़रिए से आज पिंपरी चिंचवड शहर जुलूस कमेटी और उलमा काउंसिल के माध्यम से हमने पूरे शहर में ये संदेश दिया है और अमन शांति के साथ पिंपरी चिंचवड शहर में जुलूस मोहम्मदिया मनाया गया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मैदान में इसको एक बयान और प्रवचन के साथ ख़त्म किया गया। मैं इसमें फिर एक बार पूरे पिंपरी चिंचवड शहर के पुलिस डिपार्टमेंटों का, पत्रकारों का, हमारे आए हुए तमाम मुस्लिम तंजीमों का और भाइयों का दिल की गहराई से जुलूस कमेटी की तरफ से खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।